Let's talk about artemisinin and its derivatives. ठीक है? अच्छा, जो artemisinin derivatives है ना, they're metabolized in the food vacuole of the parasite. और इनकी जो metabolism होती है ना plasmodium की food vacuole में leads to the formation of toxic free radicals. ठीक है? तो ये mechanism of action है which we should mention over here. Metabolism of the drugs inside of the food vacuole, and the food vacuole is obviously present within the parasite, leads to the formation of free radicals. And you know free radicals are something which always damage the DNA, and these are actually very important as mechanisms for a variety of drugs, not just the antimalarials and not just specifically artesunate. Anyways, back to what we were talking about, right? So we've done the mechanism of action, which is a basic point as far as all of the antimalarials are concerned. Again, the artemisinins, they are blood schizonticides, and these are active against P. falciparum, including the multi-drug resistant strains. And in fact, this is the group which is mostly used in Pakistan. Okay? So we use these as blood schizonticides, as you can see over here, right? Primarily as blood schizonticides and for MDR resistant species, especially जो P. falciparum वाली हैं. इसके अलावा severe infections के लिए एक IV form भी available है artesunate की. ठीक है? IV artesunate is also mentioned over here. तो वो it's basically artesunate is drug of choice for IV, and ये severe infections में basically इस्तेमाल की जाती है. अच्छा, इनकी ना जो हाफ लाइफ है ना वो बहुत शॉर्ट है, 1 से लेकर 3 घंटे की है, इसलिए आप इन्हें कीमोप्रोफिलैक्सिस में इस्तेमाल नहीं करते अकेले. ठीक है? सो व्हेन वी हैव दैट पर्टिकुलर option of chemoprophylaxis, so we have it written as weak. We can qualify that, so we know why they're weak at chemoprophylaxis, because of their short half-life. We don't give them for chemoprophylaxis alone. This is again something important for viva purposes. They can ask you that. They can ask you, do we use it for chemoprophylaxis? The answer is no. The reason they might also ask, but less likely compared to the question, these are first choice of chloroquine resistant malaria in most countries. ये बात याद रखें, this is very important. आप इन्हें monotherapy में नहीं इस्तेमाल करते. They are best used in combination with other agents, and these are the only drugs reliably effective against the quinine resistant strains. बाकी होते हैं लेकिन they are not reliably effective. ज़रूरी नहीं कि वो effective हो. तो एक important point है ध्यान में रखने का. Another pretty interesting point is कि इनकी जो side effects हैं ना वो इतने dangerous किस्म की नहीं होते compared to the other ones. ठीक है? देखो types हैं. ठीक है? There is something known as quartum, and quartum is the most commonly used, how shall I say, combination. Again, this is very important. They can ask you कि कौन सी combination सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में, and the answer to that is quartum. And this is a combination. ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? आर्टीमीथर और लुमिफेंट्रिन का, जो कि इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में. एंड द आंसर इस किसे हम क्वार्टम कहते हैं. ठीक है? तो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ क्वार्टम. ये क्वार्टम में कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल हो रही हैं? लुमिफेंट्रिन बिलोंग करती है टू अनदर ग्रुप विच वी विल डिस्कस ब्रीफली. ठीक है? कार्डियक मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है व्हेन यू गिव IV क्विनीन. ठीक है? एडवर्स इफेक्ट्स नोजिया, डिजीनेस. अच्छा, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं. ठीक है? 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में देते हैं. यू नॉर्मली डोंट गिव इट, ठीक है, इन द 1st ट्राइमेस्टर. लेकिन अगर सिवियर वाला इशू है ना तो फिर आप IV आर्टेसोनेट देते हैं, विच इज़ द मोस्ट, हम कह सकते हैं, बैड फॉर्म. और ये तमाम ट्राइमेस्टर्स में आप देते हैं इफ़ यू इनकाउंटर सिवियर मलेरिया. वैसे जब आप ओरली देते हैं तो 1st ट्राइमेस्टर में नहीं देते, 2nd और 3rd में देते हैं. इस ग्रुप से. ठीक है? तो ये बातें आई एम होपिंग कि समझ आ गई हैं आपको. Artemisinins do not alter the rates of congenital abnormalities in pregnant women. With this, we're done considering the most pertinent points as far as artesunate, artemether, etc. are concerned. Now we will talk about some other very important antimalarial agents, specifically
Primaquine and Mefloquine, and these are a bit different to the ones we've discussed so far. So let's start with Primaquine and then we might talk about Mefloquine. ठीक है, Primaquine क्या है? Primaquine की जो ख़ास बात है ना वो ये है कि वो ना इट्स रेडिकल क्यूरेटिव बेसिकली. अभी तक हमने ना कोई भी ड्रग ऐसी नहीं डिस्कस की जो कि एक टिश्यू शिज़ोंटिसाइड हो. So now we're going to talk about Primaquine, which is in fact a tissue शिज़ोंटिसाइड. ये आपको लंबे अरसे के लिए देनी पड़ती है, ठीक है, तभी जाकर काम बनता है. 14 वीक रेजिमेन है, ठीक है, 14 वीक का, 14 हफ्तों का. एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4. जस्ट टू गेट योर हेड अराउंड इट, ठीक है. इसकी अच्छी, टॉकिंग अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स, इसकी अच्छी अब्जॉर्प्शन है ओरली, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये एक रेडिकल क्यूरेटिव है, ठीक है, एज वेल एज अ कॉजल प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है, एज वेल एज गेमिटोसिडल. ये बातें याद रखनी है. इसका मतलब ये है कि आप इसको दे सकते हैं कीमोप्रोफिलैक्सिस के तौर पर, और आप दे सकते हैं इसको गेमिटोसिडल के तौर पर. अभी तक हमने इतनी ख़ास डिटेल में इन बातों को डिस्कस नहीं किया ना, ठीक है, मज़े की बातें हैं. लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये एक टिश्यू शिज़ोंटिसाइड है. 14 हफ्ते में ये एलिमिनेट कर लेता है लेटेंट इन्फेक्शन को. ये गेमिटोसिडल है तमाम स्पीशीज़ के लिए. सो फार वी टॉक्ड अबाउट क्विनीन में हमने इतनी डिटेल में इस बात को डिस्कस ही नहीं किया. क्लोरोक्विन में वी डिड से कि वो गेमिटोसिडल है लेकिन वाइवेक्स के लिए. इस केस में गेमिटोसिडल है तमाम स्पीशीज़ के लिए. ऑलराइट, इफेक्टिव फॉर ऑल स्पीशीज़. सिंगल डोज से ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करता है तमाम में. बल्कि मैं गलत बात कर रही थी, आई गॉट अ बिट कंफ्यूज्ड. बल्कि ठीक कह रही थी, गेमिटोसिडल है वो तमाम स्पीशीज़ के लिए, ठीक है. ज़्यादा बेहतर है एज अ टिश्यू शिज़ोंटिसाइड, क्योंकि एज अ टिश्यू शिज़ोंटिसाइड ये लेटेंट इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और हिपैटिक स्टेज को एलिमिनेट करता है, ठीक है. अच्छा, क्या बातें जहन में रखनी है? ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. ये बात कभी नहीं भूलनी. आपने कभी भी प्राइमाक्विन नहीं देना टू अ प्रेग्नेंट लेडी or even to an infant because of its hemolytic potential. Never give Primaquine to a pregnant woman or to a child or to an infant. Extremely and absolutely contraindicated. ठीक है? क्यों? Hemolysis की वजह से. Do we see any potential neuropsychiatric arrhythmic effects? वो हम देखते हैं. What about notable drug interactions and combinations? इन सब को देखते हैं. आप ना प्राइमाक्विन को क्लिंडामाइसिन के साथ देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोसिस्टिस, जो कि एक ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है. इस बात को याद में रखें, ये कॉम्बिनेशन है. साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे खास नहीं, थोड़ा बहुत अनीमिया होता है, थोड़ा बहुत साइनोसिस होता है, नथिंग टू मच. लेकिन अगर G6PD डेफिशिएंसी वाला पेशेंट है, उससे आपने गलती से प्राइमाक्विन दे दी तो यू विल गेट सिवियर हीमोलिसिस. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. यू डोंट गिव प्राइमाक्विन IV क्योंकि उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है. ओरल रूट से इट्स अ गुड ड्रग, ठीक है. 2-3 एडिशंस आप इधर कर लें, ठीक है. यू डोंट गिव दिस ड्रग IV. क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज ऑफ द हाइपोटेंशन it can cause. You're not supposed to give it to pregnant women, you are not supposed to give it to an infant, and you're not supposed to give it to a person with G6 hemolytic deficiency. इसका काम मोस्टली क्या है? वो एलिमिनेट करता है लेटेंट स्टेज को, लेकिन लंबी रेजिमेन होती है 14 हफ्तों की. अब मेफ्लोक्विन की बात करते हैं. मेफ्लोक्विन भी एक टिश्यू, एक ब्लड शिज़ोंटिसाइड है और वो एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है. ये इसकी खास बात है. एल है ना मेफ्लोक्विन में, उससे लॉन्ग एक्टिंग याद रखें. ये निमोनिक है फॉर द ब्लड शिज़ोंटिसाइड्स, MACHAR, ठीक है. इसको हम बाद में देखेंगे. व्हाट डू दी स्टैंड फॉर? क्या ये रेडिकल क्यूरेटिव है? नहीं. क्या ये कॉजल प्रोफिलेक्टिव है? यस. केमिटोसिडल है? नहीं. तो मेफ्लोक्विन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी ना न्यूरोसाइकियाट्रिक सिम्टम्स बहुत ही गंदे होते हैं. सो ये आपने कभी भी क्विनीन और क्विनिडीन के साथ नहीं देना. कभी भी ऐसे पेशेंट को नहीं देना जो कि एपिलेप्टिक हो या जो कि प्रोन हो टू डिप्रेसिव एपिसोड्स. एरिथमिक इफेक्ट है? यस है. कभी भी किसके साथ नहीं देना? क्विनीन और क्विनिडीन के साथ नहीं देना. ये हमने मेफ्लोक्विन की कुछ अहम खास बातें देखी हैं. लेट मी सी इफ आई मिस्ड एनीथिंग. है ये क्या? ये बिलोंग करता है टू द क्विनोलिन फैमिली, 4 क्विनोलिन. आप इसे सिर्फ ओरली देते हैं. ये फर्स्ट लाइन ड्रग है गिवन फॉर प्रोफाइलैक्सिस इन ऑल
geographical areas with chloroquine resistance. ठीक है, तो ये एक फर्स्ट लाइन ड्रग है दैट यू गिव फॉर प्रोफिलैक्सिस. इस बात को हम इधर लिख लेते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग. वरना तो आप कीमो प्रोफिलैक्सिस में क्लोरोक्विन इस्तेमाल करेंगे, बट इफ़ यूर इन एन एरिया जहाँ रेजिस्टेंस है तो फिर फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होती है फॉर कीमो प्रोफिलैक्सिस. ये क्वेश्चन आ सकता है ना, कीमो प्रोफिलैक्सिस की इंपॉर्टेंट ड्रग्स बताएं. ज़ाहिर सबसे हमको अपने पहले लिखना चाहिए इन एरियाज विद क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस. ठीक है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिट. होपिंग कि आपको समझ आ गया होगा. अब ज़रा आगे देख लेते हैं. ठीक है, ये एक ऑल्टरनेटिव ड्रग है टू क्विनीन इन एक्यूट अटैक्स एंड विद अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन. इसका मतलब है ज़ाहिर है ये टिश्यू शिज़ोंटिसाइड भी है ना, तो इन दिस इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं. मोस्टली आप क्विनीन वगैरह करते हैं इन दिस रिगार्ड, लेकिन एज अ कीमो प्रोफिलैक्सिस इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड, द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, डेफिनेटली नंबर 1. टॉक्सिसिटीज़ GI डिस्ट्रेस है, स्किन रैश है, हेडेक है. हाई डोजेस में इट कैन कॉज कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट्स और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोलॉजिक इफेक्ट्स इंक्लूडिंग सीजर्स. एपिलेप्टिक को नहीं कभी देना, डिप्रेसिव लोगों, पीपल हु आर ससेप्टेबल टू डिप्रेशन उन्हें नहीं देना. प्राइमाक्विन में भी देख लेते हैं कुछ रहना क्या हो. ठीक है, ये भी एक हम एज प्रीवियसली मैंशनड कैन बी यूज एज अ टिश्यू शिज़ोंटिसाइड बट डेफिनेटली नॉट अ पावरफुल वन. बहुत अच्छा गेमिटिसाइडल है. प्राइमाक्विन इज़ गुड गेमिटिसाइडल. ठीक है, इसमें ये वाली बात इंपॉर्टेंट है. क्या बात इंपॉर्टेंट है? लिमिट करता है ट्रांसमिशन को. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिमिट्स ट्रांसमिशन. देखिए बहुत सारी है ना जिनकी गेमिटिसाइडल भी और बाद भी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन किन चीज़ों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? मेफ्लोक्विन को प्रोफिलैक्सिस में, प्राइमाक्विन को ट्रांसमिशन में आप स्पेशली इस्तेमाल कर रहे हैं. ये इनकी खास बातें हैं ना, इन बातों को याद रखना चाहिए. प्राइमाक्विन एज मेंशन प्रीवियसली वेल टॉलरेटेड है, लेकिन G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स को नहीं देना और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में. अहम बातें पहले बंदे को कवर कर लेनी चाहिए. इसके अलावा ना एंटीफोलेट ड्रग्स होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं एंटी मलेरियल्स. ठीक है, उनको आप डिस्कस करते हैं. नाउ दैट वी आर डन विद द बिग वंस. हेलोफेंट्रिन फैमिली का पता होना चाहिए, ये भी टिश्यू शिज़ोंटिसाइड्स होते हैं. प्रोग्वेनिल एक एंटीफोलेट ड्रग है. एमोडाक्विन का भी पता होना चाहिए मोटा मोटा. इनको हम देख लेते हैं. एंटीफोलेट ड्रग्स. एंटीफोलेट ड्रग्स में क्या क्या शामिल है? ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं वो जो सारी ड्रग्स ग्रीन में है ना, वो क्या है? वो स्लो एक्टिंग टिश्यू इरिथ्रोसाइडल है. उसको आप साइड पर करें. स्टार्टिंग विद द एंटीफोलेट ड्रग्स, नाम पता होने चाहिए. पायरीमेथामीन एज यू कैन सी, प्रोग्वानिल जो कि उसके ऊपर लिखा हुआ है, PP से स्टार्ट हो रही हैं, और डैप्सोन. ये तमाम ड्रग्स ओरली अब्जॉर्ब होती हैं, यूरिन में एक्सक्रीशन होती हैं अनचेंज्ड फॉर्म में. अच्छा, बाकी एंटीफोलेट ड्रग्स की निस्बत जो प्रोग्वानिल है उसकी हाफ लाइफ कम है. देखो जो सल्फोनामाइड्स है ना, जिसमें डैप्सोन है, वो एक्ट करता है एक एंटी मेटाबोलाइट के तौर पर फॉर पापा. फॉलिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करता है प्रोटोजोआ में, यानी प्लाज्मोडियम में. प्रोग्वानिल इज प्रोड्रग, इट इज़ एक्टिवेटेड टू साइक्लोग्वानिल. ये क्या मैंने बात की? प्रोग्वानिल एक प्रोड्रग है, जैसे कि नाम से पता चलता है, ये कन्वर्ट होता है साइक्लोग्वानिल में. जो पायरीमेथामीन है ना, विच इज़ ऑलरेडी एक्टिव, और जो साइक्लोग्वानिल है ना, वो सिलेक्टिव इनहिबिटर्स हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के. सेलेक्टिव क्यों? बिकॉज इंसानों के डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज वैसे होता ही नहीं है, उसको ये इनहिबिट नहीं करते हैं. होता है वैसे, लेकिन इफेक्ट क्यों नहीं होता? बिकॉज वो सिलेक्टिवली मलेरिया के डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज पर एक्शन करता है. अच्छा, हम कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए ना. पायरीमेथामीन इज गिवन विद समथिंग नोन एज सल्फाडॉक्सिन. इन दोनों का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है ना, वो सीक्वेंशियल स्टेप्स को ब्लॉक करते हैं एंड फॉलिक एसिड सिंथेसिस. नाम पता होना चाहिए, पायरीमेथामीन एंड सल्फाडॉक्सिन. क्लिनिकल यूज़, ये तमाम क्या है? ब्लड शिज़ोंटिसाइड्स हैं. मेनली इस्तेमाल किसके अगेंस्ट होते हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के अगेंस्ट होते हैं. जो पायरीमेथामीन का कॉम्बिनेशन है ना, विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी सेड कि वी गिव पायरीमेथामीन विद सल्फाडॉक्सिन क्योंकि वो सीक्वेंशियल स्टेप्स पर एक्ट कर रहा है. इस फिक्स्ड कॉम्बिनेशन का नाम पता होना चाहिए, फैंसिडर. और ये आप इस्तेमाल करते हैं क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ पी फैल्सिपेरम के अगेंस्ट. पता क्या होना चाहिए? ये एक स्लो एक्टिंग कॉम्बिनेशन है.
ठीक है, लेकिन ये अच्छा है फिर भी, ठीक है। इसके अलावा आप पायरीमेथामीन को आप सल्फाडॉक्सिन के साथ दे रहे हैं, एंड दिस इज़ नोन एज फैंसिडर, यूज्ड फॉर पी फाल्सिपेरम, स्लो एक्टिंग है बट इफेक्टिव। प्रोग्वानिल का कॉम्बिनेशन होता है विद एटोवाक्वन, प्रोग्वानिल विद एटोवाक्वन फिक्स कॉम्बिनेशन, इसमें मेलोरोन कहते हैं। आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए, फॉर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया और इवन मेफ्लोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया के लिए भी कीमोप्रोफिलैक्सिस। प्रोग्वानिल विद एटोवाक्वन, मेलोरोन नाम पता होना चाहिए, प्रोग्वानिल लिखा हुआ है, इसका कॉम्बिनेशन होता है एटोवाक्वन के साथ, कीमोप्रोफिलैक्सिस में इंपॉर्टेंट है। पायरीमेथामीन का सल्फाडॉक्सिन के साथ इंपॉर्टेंट है फॉर पी फाल्सिपेरम मलेरिया जो कि रेजिस्टेंट है टू क्लोरोक्विन। और वही सल्फोनामाइड्स की आपने बेसिकली याद रखनी है ना, वही जनरल वाली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो नाउ वी डन विद द एंटीफोलेट ड्रग्स, इनको आप इस्तेमाल करते हैं एंटी मलेरियल्स के तौर पर। अदर एंटी मलेरियल्स में आप बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन की। अच्छा, डॉक्सीसाइक्लिन में अहम बात जो पता होनी चाहिए वो ये है कि डॉक्सीसाइक्लिन प्राइमरीली कीमोप्रोफिलैक्टिक है। क्या है वो? प्राइमरीली कीमोप्रोफिलैक्टिव है, रोज़ाना लेना पड़ता है, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद क्विनीन अगर एक्टिव फाल्सिपेरम इन्फेक्शन हो, बिकॉज एज प्रीवियसली मेंशन डॉक्सीसाइक्लिन क्विनीन की डोजेज रिडक्शन करता है फ्रॉम 7 days to 3 days। फर्स्ट फंक्शन ये कीमोप्रोफिलैक्टिव, सेकंड फंक्शन ये डोजेज रिडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एंटी मलेरियल है ना वो एमोडायाक्विन है। ये बहुत सस्ती होती है, लो कॉस्ट है, ये इसकी ग्रेट बात है, और ये इफेक्टिव है अगेंस्ट क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट पी फाल्सिपेरम। उतना रिलायबली इफेक्टिव नहीं है लेकिन है। इसको हम देते हैं आर्टेसोनेट के साथ, जैसे कि हमने लूमीफेंट्रीन को नहीं दिया था आर्टेसोनेट के साथ। एमोडायाक्विन इज गिवन इन फिक्स्ड कॉम्बिनेशन विद आर्टेसोनेट। इसकी प्रॉब्लम क्या होता है? हेमाटोलॉजिक टॉक्सिसिटीज़ होती हैं, मसलन कि एप्लास्टिक एनीमिया, एंड दीज हैव बीन एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ एमोडायाक्विन। फिर एटोवाक्वन, ठीक है, ये इसमें हमने कहा था ना प्रोग्वानिल के साथ देते हैं, एंड द कॉम्बिनेशन इज नोन एज मेलोरोन, ठीक है। ये कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए भी अच्छा है और आप पोटेंशियली इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फाल्सिपेरम के लिए भी। हेलोफेंट्रीन, ठीक है, उसमें लूमीफेंट्रीन की बात की थी जो कि आर्टीमीटर के साथ फिक्स कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है, समथिंग नोन एज क्वार्टम, ठीक है। एंड नाउ वी डन विद ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टफ दैट वन नीड्स in order to be able to appear for exams in Pakistan regarding anti-malarial drugs.